This 35-year-old woman, full of life, has two children, 7 and 5, was on her way for a family vacation. And before her family knew, she was, just walking through the station, she was dead, gone in few seconds. What happened to Sakshi Ahuja is just not shocking, but also a tale of how the work in this country is done, how people responsible do not care two hoots about the Aam Aadmi. Young teacher, she was electrocuted at the Delhi railway station. Her family has said that it is criminal negligence, apathy. They blame the railways. 35-year-old Sakshi Ahuja was electrocuted in the national capital at the New Delhi railway station. The incident at the parking lot while she headed towards the platform. She was going towards the platform to catch a train for a family holiday. Her 9-year-old son and 7-year-old daughter had a narrow escape. How did Sakshi die though? It was raining. Sakshi was just walking through a water puddle and she got electrocuted because there was a pole right next to that puddle with open wires that caused her death. Her husband says this is negligence at several fronts. The family claims apathy, no help for at least 20 minutes. There was no ambulance available. And the bystanders and the people there say that repeated complaints were made about this open wiring, about this pole, which the railway officials did not heed to. The railway department officials have met, in fact, Sakshi. Initial reports said that the woman grabbed a pole to avoid slipping into that water puddle. Two signage poles with warning, with the open wiring, I beg your pardon, were found in the location. The woman was heading for a family holiday. She died in few minutes. Her father was also there. Now imagine your family, you and I, all of us, on time to time take the services of the Indian Railways. Imagine telling your family that you'll be reaching somewhere in few hours and then dying in this bizarre manner. Questions need to be asked. Accountability has to be fixed. I spoke to Sakshi's father, Lokesh Chopra, just a short while back about their ordeal. Listen in. सबसे पहले सर एनडीटीवी और हम सबकी ओर से हमारी कंडोलेंसेस आपको, हमारी संवेदना आपको, आपके परिवार को। बहुत मुश्किल वक्त है। मुझे बताया गया सर कि आप पार्किंग कर रहे थे अपनी गाड़ी की जब आपकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ। पहले आप हमें बताएं सर, हुआ क्या था उस दिन? मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो अपनी गाड़ी को पार्किंग की ओर लेके गाड़ी लगाने के लिए खड़ा होगा। मैं कहा बेटी को कहा तो आप अपना बैग वगैरह बच्चों को लेके आप अपना प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए ट्रेन के अंदर बैठो। तो वो इतनी देर के अंदर वो अपनी बेटी उतर के बच्चों के साथ गई आगे। पहुंचने के बाद वहां पर कुछ व्यवस्था तो ठीक थी नहीं। वहां वो पानी के अंदर उसका कुछ पैर वगैरह गया है जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। सर उनके बच्चे भी उनके साथ थे? हाँ, बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे और मेरी बेटी एक दूसरी थी, माधवी, वो भी साथ थी। मतलब ये सोचना बड़ा मुश्किल है आपके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन आप वहां जब पहुंचे तो क्या बताया गया आपको? कारण वहां पे पुलिस थी, क्या हुआ जब आप वहां पे पहुंचे घटनास्थल पे? पहली बात तो व्यवस्था में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, पुलिस ही नहीं थी, एम्बुलेंस भी नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई भी वहां अवेलेबल नहीं था। वो तो वहां की आसपास की लेबर ने बताया कि भी यहाँ पर पहले भी एक ऐसे बार किसी को इलेक्ट्रिकल करंट लग चुका है और हम लोगों ने इतला भी करी है, रिपोर्ट भी, कंप्लेंट भी दर्ज करी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जैसा हमारा रूटीन का हिसाब है कि जहाँ चीज खराब पड़ी है तो पड़ी रहती है, कहीं महीनों तक खराब पड़ी रहती है। और उसमें बारिश थी, बारिश की वजह से वो नीचे स्टैग्नेंट वाटर पड़ा हुआ था और वो उसके अंदर उसका पैर गया और वो हाई वोल्टेज टेंशन वायर थी 440 की, तो उसके अंदर उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। सर ये जो घटना जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी वहां पे लोगों ने आपको बताया कि इस तरह की कोई घटना हुई, वहां पे करंट इस तरह से आया, आपने इस जो नेग्लिजेंस है इसके बारे में किससे बात करी? क्या रेलवे के अधिकारियों से आपकी बात हुई? ये रेलवे स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर ये घटना हुई? हाँ, रेलवे स्टेशन के प्रेमिसेस में अंदर ही घटना हुई। जब पार्किंग रेलवे स्टेशन की है तो उसमें मेरे पास तो पार्किंग का पर्ची भी है, रेलवे स्टेशन की है, और रेलवे स्टेशन का ही तो प्रेमिसेस है और रेलवे इसकी मालिक है।
क्या पार्किंग किसी बाहर वालों की थोड़ा है? वो आप एरिया किसका है? वो एरिया रेलवे का ही है। रेलवे ही टेंडर निकालता होगा, मुझे तो बाकी जानकारी नहीं है कि प्राइवेट एजेंसी की हो। आपकी क्या रेलवे के अधिकारियों से इस बारे में बात हुई? रेलवे के अधिकारियों से बात तो नहीं, बाकी रेलवे के अधिकारी कुछ कल आए थे घर में और कह रहे थे कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं हम उनके ऊपर सस्पेंशन के कुछ ऑर्डर निकालेंगे कि जिनकी वजह से ये मिसहैपनिंग हुई है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई होती नजर नहीं आई। लोकेश जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? ये तो बाद में आपकी बेटी चली गई, अब ये तो लीपापोती की बात है कि हम लोगों को पकड़ेंगे। इन चीजों पर पहले भी उनको ध्यान देना चाहिए था। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में जो सुधार होना चाहिए उसके हिसाब से आदमी हम नहीं बन पाए। ठीक है, हम हाई क्वालिटी ट्रेन तो बना पा रहे हैं वंदे भारत, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए रेलवे स्टेशन पे वो आज भी नहीं बन पाया। जैसा मैं आपको 3 बातें कहूंगा उसके लिए भी, एक तो कम से कम एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिए जो 24 आवर्स हो, और उसमें कोई ना कोई डॉक्टर्स भी होने चाहिए। कोई भी छोटा हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी आदमी जो गाड़ी को पकड़ने के लिए आया गिर सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है। वो व्यवस्थाएं बहुत खराब है। यानी कि एक आदमी गिरने के बाद या डेथ होने के बाद मेरी बेटी को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाएगा लेडी हार्डिंग। इतनी व्यवस्था में समय क्यों लगा? उसका इलाज ही वहां नहीं है, वहां व्यवस्था ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये बहुत कमी है। आपने बताया 1 घंटे का समय लगा इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद से उनको वहां से स्पॉट से हटाने में, लेके जाने में। हटाने में, बल्कि वो जहां पर एंट्री लेवल है वहां पर गाड़ियां इतनी फंसी हुई थी, गाड़ी निकलने के लिए आधा पौना घंटा लग गया। वो रास्ता ही ब्लॉक था। तो गाड़ी व्यवस्था अंदर हो तो फिर भी आदमी किसी ना किसी तरीके से पहुंच सकता है। जब 5 लाख का फुटफॉल आपके रेलवे स्टेशन में न्यू दिल्ली में आता है, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? उस 5 लाख की व्यवस्था हमारे पास क्या है? उन 5 लाखों को क्या हम सुविधा दे पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। क्या हमारे पास 5 लाख की सुविधा देने के लिए व्यवस्था क्या सही है? क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ भी कर पा रहे हैं? सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जब ये घटना के बारे में आपको पता चला और आप स्पॉट पे पहुंचे, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या, मतलब वहां पर लोगों से मदद लेने की कोशिश करी? क्या रेलवे के अधिकारियों ने या स्टेशन के लोगों ने आपको मदद पहुंचाई? मैं तो गाड़ी पार्किंग करने के बाद 15-20 मिनट के बाद जब पहुंचा तो तब तक एक आधी जो आधा घंटा पहुंच गए, वैन उनकी मिल गई थी। और वैन भी कोई बाहर से कुछ हायर करी हुई थी और उसके अंदर तो कोई डॉक्टर्स वगैरह थे ही नहीं। और वो पुलिस वाला एक कह रहा था कि साथ में इनको हॉस्पिटल लेके जाना, इनको दिखाएंगे। मेरी नॉलेज में तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो लग गया था, शी इज नो मोर, लेकिन मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मैं उनको थोड़ा सा रफली ऐसा परेशान होना हुआ देख नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा नॉलेज है कि इसमें सांस तो रहा ही नहीं है। लेकिन उसकी मैं कहता हूँ डेथ हो गई थी, 3-4 मिनट में ही हो गई थी। और जब ऐसा करंट लगा है उसको वहां पर, फिर पहुंचते फिर गाड़ी की पार्किंग का, जैसा आपको पता है, वहां गाड़ियां फंसी हुई थी, पुलिस वाला बाहर नहीं थे गेट पे रोकने वाला। फिर किसी ना किसी तरीके से गाड़ी निकली, फिर हम लेडी हार्डिंग लेके गए। वहां पर पहुंचे तो फिर उन्होंने कहा ये तो शी इज नो मोर। वो डेथ डिक्लेयर तो हॉस्पिटल वाले ही कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन वाले तो कहेंगे नहीं इसमें सांस आ रहा है, इसमें तो काम सही है, तो ठीक है। वो थोड़ा डेथ बताएंगे, डेथ तो डॉक्टर ही बताता है, आपको पता ही है। सर, कहां जा रहे थे आप लोग? कहां का प्लान था आपके परिवार का? हमारा चंडीगढ़ जाना था और वंदे भारत से जा रहे थे और न्यू दिल्ली से। और बच्चों का थोड़ा सा आइडिया था कि भी नया आइडिया है, ताकि हम थोड़ा सा वेकेशंस में चेंज कराएंगे। और कुछ बच्चों को क्लास होमवर्क वगैरह मिलता है। हमारा एक बड़ा ग्रैंड सन है, उसको बड़ा इनोवेटिव है, तो उसको था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में मैडम वगैरह को दिखाऊंगा कि आई हैव डन दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग वेकेशंस। What was your daughter like, sir? बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए शायद सवाल का ही अभी जवाब देना। आज आप सोच रहे होंगे अपनी बेटी के बारे में। साक्षी के बारे में अगर आप हमें बताएं, हाउ वाज साक्षी? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है मेरी बेटी, और आर्किटेक्ट थी और प्रोफेशनल थी, अच्छा काम करती थी, अच्छी माँ थी, और जॉइंट फैमिली में रहने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, सोसाइटी में काम करने वाली, किसी की भी हेल्प करने वाली। आज यदि उसका फीडबैक सोसाइटी में 100 आदमियों से ले लिया जाए
तो उसकी 99 तारीफ करने वाले होंगे, ऐसा नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि एक साक्षी गई है, ये साक्षी के जाने का जो ठीक, हमें अपना तो घर का अफसोस है ही है, लेकिन आगे कोई 10 या 15 साक्षी और ना जाए, उसमें कुछ सुधार हो। क्या सुधार सर, क्या ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको लगेगा कि कम से कम साक्षी के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, लोग जिम्मेदार हैं जो पकड़े जाएंगे? भी एक तो जो भी आप किसी को अवार्ड ऑफ वर्क देते हो, एजुकेशन देते हो, काम देते हो, उसका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, या किसी ने कंप्लेंट आपको लिख के दी है, तो वो चीज वो रिपीट क्यों होती है? हमारी इन व्यवस्था में उसकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होती है? हेड ऑफ जो रिस्पॉन्सिबल वहां के लोग हैं, वहां जाके मॉनिटर क्यों नहीं करते कि भी ये यहाँ पर इसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकता है? वो तारे नंगी को रहती हैं, ऐसे पोल खुले को रहते हैं। अब आज मीडिया वाला दिखा रहा है तो सारे पोल देखे जा रहे हैं। यानी कि मीडिया दिखाए तो काम करना है, या कोई आदमी कुछ समझाए तो करना है। हमारा अपनी बुद्धि नहीं लगेगी, हमारा कुछ समझ नहीं आएगी, ये काम करना है। मीडिया हर जगह तो नहीं जा सकता ना समझा सकता। सर किसे न्याय मानेंगे आप? क्या जस्टिस होगा साक्षी के लिए? मेरा तो न्याय यही है कि कम से कम धारा जो सही है, जो इसके लिए जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई हो। छोटा मोटा धन मुझे चाहिए नहीं, वो तो मैंने रिफ्यूज ही कर दिया है। मुझे धन की चिंता ही नहीं है, भगवान की दया से कृपा है, ऐसी कोई समस्या नहीं। मिस्टर चोपड़ा कह रहे हैं रिफंड वगैरह ले लो रेलवे का, मुझसे ये ले लो। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा छोटा धन नहीं चाहिए ना, हमें ऐसा है। बल्कि मैंने आज की ट्रेन थी वापसी की, मैंने यूज ही नहीं करी है। जो मतलब मेरी वाइफ ने तो ये कहा बस किसी भी जो गरीब लोग हैं जो जा सकते हैं उनको तो वो यूज करने, हमें कोई एतराज नहीं। इस तरह की घटनाओं में देखा गया है सर कि जब किसी की इस तरीके की लापरवाही से मौत हो जाती है, उसके बाद परिवार बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ता है। तो आपको लगता है कि जल्दी टाइम बाउंड एक फैशन में पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या आपको आप तैयार हैं इस तरह की एक लीगल बैटल के लिए? नहीं, हम तो तैयार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो। बहुत लंबा प्रोसेस है। जो अथॉरिटीज अभी देख रही होंगी, अगर रेलवे मिनिस्टर अभी देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कार्रवाई करें। हमारे को तो खुशी है और हमारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद है यदि वो कार्रवाई पर जल्दी से जल्दी अमल कर दें और हमें जो एप्रोप्रिएट कुछ मिल सकता है हमारे बच्चों की एजुकेशन या कैरियर के बारे में और उनके लाइफ के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छा है।